Before proceeding further to the video, let me tell you about this amazing books by Oswal. So these are the CBSE question bank for class 9. So here I have got SST, English, mathematics along with science. Now let me give you a brief description about all these books. So in this books you will get the 100% updated syllabus, timed revision, extensive practice, concept clarity along with 100% exam readiness. Now let me show you the glimpse of the book. So here the book starts, you will get the index. Then this is the book of SST. So first you will get revision notes along with a QR code at the side of the page. Then you will get the mind maps, and again here are the notes, and you will also get key fact, key dates. Then here the MCQ question starts. You will get also assertion reason, very short long question answers along with their solutions. Yeah, so this is now science. So here is the revision notes, then mind maps, then question, and this format is same in all over the books. Then this is maths index, then quick points to be revised for mathematics. Then here are the question along with the solution. Now this is English, and here you will get movements behave along with grammar. So yeah, this is the book, and this is also very good. And so these are the best book that I liked. And if you want to buy these books, then you can buy it from the link given below in the description. नाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी जो स्कूल की नोटबुक होती जिसमें मैंने केमिस्ट्री के नोट्स लिख रखे थे उसको ले लिया, और यहाँ पर मैं अपना चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करने लगी, विच इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले मैंने ये वाली टेबल याद करी बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर. और इस टेबल के बिना आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह उतने अच्छे से नहीं बना सकते, मतलब फिर उसके लिए आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालना पड़ेगा. पर अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो, स्पेशली द पॉलीएटॉमिक्स आयन वाला, बिकॉज उसके जो नेम होते हैं ना वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे. उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ओसवाल की बुक ली, और सबसे पहले इसमें जो रिवीजन पॉइंट्स दिए थे, रिवीजन नोट्स, मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया, पूरा मैंने अच्छे से समझा, याद करा. उसके बाद फिर यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी. तो यहाँ पर मैंने अपने पास एक नोटबुक रखी थी, और उसके पहले क्वेश्चन था, फिर उसके जस्ट नीचे आंसर था, इसलिए यहाँ पर मैं आंसर्स को हाइड कर करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी. सो या यू कैन ऑल्सो डू दिस ट्रिक. So this was I was doing. और now there is a slight changes in my date sheet. जिससे मैंने पहले बताया था कि my exams would be starting from 11, 12 and 13, but now there has been some changes. So my first exam is on 12th of November, and on that day I have two exams. First is of English and the second is computer. Now coming to second day, which is 13th of November, on that day I have just maths, only one paper. Then on 16th, on 14th we have children's day, so celebrations would be there. 15 is holiday, and then 16. So on 16th again I have two paper. First is of science and the second is of Hindi. Then coming to 17, it's Sunday. Then on Monday, which is 18th of November, I have social studies. So yeah, this is my date sheet. और इसमें मेरे को कुछ चीज़ अच्छी लगी बिकॉज जो लेंदी चैप्टर्स हैं जिनमें मैथ्स और एसएसटी में, मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा है, एसएसटी में लेंदी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें सिर्फ एक एक दिन पेपर है, तो उसको मैं अच्छे से रिवाइज कर सकती हूँ. तो सेकेंड पेपर के लिए मेरे को वो नहीं रहेगा कि मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है. सो दिस वॉज माई डेट शीट. और वैसे आपके कब से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट्स. मेरे तो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं. जैसे ही मेरे हॉलीडेज़ ख़त्म होगी, दिवाली छठ पूजा सबकी, वैसे ही मेरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे. सो यहाँ पर मैं शॉर्ट लॉन्ग या पर जितने भी क्वेश्चंस थे सारे टाइप्स के, उसको मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करा. और जो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और कुछ कुछ और चीज़ें जैसे वैलेंसी है, देन केमिकल फॉर्मूलाज आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. सो दिस वॉज द मेन, जो कि इनसे क्वेश्चंस मोस्टली बन सकते हैं. उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, पर वो ब्रेक कब एक घंटा में बन गया मुझे पता ही नहीं चला. फिर मैं फाइनली आई थिंक 7 या 8 बजे फिर वापस से पढ़ने बैठ गई थी. और अब मैं यहाँ पर कर रही थी इंग्लिश का चैप्टर नंबर, पोएम नंबर एक्चुअली 5.
अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये पोएम काफ़ी ज़्यादा मतलब मोरल वैल्यूज़ वाली है। तो पहले इस बुक में समरी दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोएम की। उसकी मैंने थोड़ी सी समरी पढ़ ली जिससे मेरे को वापस से थोड़ा आइडिया लग जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं उसकी प्रैक्टिस करने लगी नोटबुक में, और यहाँ पर मैं अपनी रफ़ नोटबुक पे लिख रही थी। उससे लिख लिख कर मैंने प्रैक्टिस करा। उसके बाद फिर मैंने प्लान बनाया था कि ये जो रफ़ नोटबुक है इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अपनी मैम को नेक्स्ट डे दिखा दूँगी। और मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 तुमने लिखा है उसको तुम और अच्छे से लिख सकती हो। जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा मतलब उतना एज एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसको चेंज कर लो। सो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। आई नो रोज़ रोज़ तो कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पर कभी कभी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने इसकी पूरी प्रैक्टिस करी। आई थिंक 1 या 1.5 घंटे के लिए। या सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो ये थोड़ी सी छोटी वीडियो थी बिकॉज अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिवाली की सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू सून। बाय।